Hello students, how are you all doing? I hope you all are doing good. I am Bani, your English facilitator at your favorite learning platform, Learn Forward by Feathercap. And today we'll be discussing the chapter, A Retrieved Reformation. Now, what do you understand by this, a retrieved reformation? Tell me. What does a retrieved reformation means? Retrieved means recover or regain. And reformation means to change for better or to transform for better. So, retrieved का मतलब होता है to recover और regain, and reformation का मतलब होता है reform करना, to change for better, better इंसान बनना. Now, this chapter is about a safe crack. Safe crack का मतलब होता है जो इंसान तिजोरियां खोल लेता है, वो टाइप का चोर जो तिजोरियां खोल लेता है. एक बर्गलर, एक थीफ के बारे में स्टोरी है जो बहुत ही बड़ा मास्टरमाइंड है. वो हर टाइप की तिजोरी खोल लेता है. उसके पास एक बॉक्स है जिसके जिसके अंदर बहुत स्पेशल टूल्स है सेफ क्रैकिंग के लिए. सेफ क्रैकिंग मींस तिजोरी खोल लेना, कोई भी लॉक खोल लेना, किसी भी टाइप का लॉक खोल लेना. So he has a special set of tools that he has made, that has been custom made for him, सिर्फ सेफ क्रैकिंग के लिए. एंड वो बहुत बड़ा हाई लेवल का चोर है, वो कोई भी तिजोरी खोल सकता है. एंड इस स्टोरी में बताया गया है कि वो कितना बड़ा चोर है, कैसे वो प्रिजन में होता है, उसको प्रिजन से उसको बेल मिल जाती है, वो वापस आता है एंड ही सेट्स हिज फुट अगेन इन दैट प्रोफेशन ऑफ सेफ क्रैकिंग. एंड देन ही अगेन becomes a thief or a burglar, and then he meets someone who becomes the love of his life and he reforms just because he wants to be a better man for her, because he knows that अब उस वाली प्रोफेशन में कुछ नहीं पड़ा and he wants to live a simple and a happy life with that woman. तो let us read the chapter to know कि उसका reformation कैसे होता है, how he goes from being such a mastermind of a thief to a simple man who helps people. तो अब देखते हैं कैसे चलता है चैप्टर. In the given story is an absorbing story. Absorbing का मतलब बहुत ही ज्यादा ना सबको धसा देने वाला story about a safe cracker who changes suddenly. Let us read the story to know how he changes himself. In the prison shoe shop, Jimmy Valentine was busy at work making shoes. कहाँ पर the story is set in, कहाँ पे set है, set in the prison. So in the prison shoe shop, प्रिजन में भी ना शू शॉप होती है, जेल में भी शू शॉप थी. वहां पे दिस इज द पर्सन दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. ही इज द सेफ क्रैकर, जिमी वैलेंटाइन. So he was busy at work, he was making shoes. A prison officer came to the shop and led Jimmy to the prison office where he was given an important piece of paper. And एक prison का officer आया, he came to Jimmy Valentine in the shoe shop and he asked Jimmy to you accompany him to the prison office, and there he was given a piece of paper, an important piece of paper. It said that he was free. Now he was free, he was set out on bail. He was admitted to the jail just because of safe cracking, and he expected that उसको सिर्फ 3-4 महीने में bail मिल जाएगी. But he was there longer for like he was there for 10 months now, and he was longer than 3 to 4 months, but his total sentence was of 4 years. But he did not expect himself to continue the whole sentence, because उसको पता था safe cracking को इतना बड़ा crime नहीं है जिसके लिए उसको इतने साल की सजा मिले. जिमी टुक इट इन अ टायर्ड काइंड ऑफ वे. उसको ना कोई बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं हुई ये सुन के कि वो 10 महीने बाद उसको बेल मिल रही है. He had served nearly 10 months of a 4-year sentence. कितने साल का सेंटेंस था? 4 साल का. But he had many friends, but he had expected to stay only for 3 months. उसको लगा था वो सिर्फ 3 महीने रहेगा at the longest. Jimmy Valentine had many friends outside the prison. A man with so many friends does not expect to stay in prison for so long.
और एक आदमी जिसके इतने सारे फ्रेंड्स हो ना प्रिजन के बाहर, वो एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो इतने टाइम जेल में रहेगा, क्योंकि कोई ना कोई तो बेल करा ही देगा ना अगर इतने सारे फ्रेंड्स हैं। नाउ वैलेंटाइन सेड द चीफ प्रिजन ऑफिसर, किसने कहा ये? चीफ प्रिजन ऑफिसर ने। यू विल गो आउट इन द मॉर्निंग, तुम सुबह तुम्हारी बेल हो जाएगी, यू विल बी फ्री, यू विल बी अ फ्री मैन, यू विल बी फ्री टू रोम द स्ट्रीट्स, यू विल फ्री टू डू व्हाटएवर, यू विल बी फ्री टू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। This is your chance. Make a man of yourself. You're not a bad fellow at heart. Stop cracking safes and live a better life. तो जो चीफ प्रिजन ऑफिसर था उसने कहा कि ये तेरी चांस है, दिस इज अ चांस फॉर यू टू बिकम अ बेटर मैन। यू आर अ गुड मैन एट हार्ट, यू आर नॉट अ बैड फेलो, तुम कोई बुरे इंसान नहीं हो। इफ यू चूज अ बेटर ऑक्यूपेशन, अ बेटर प्रोफेशन, देन यू विल बी गुड टू गो। ये सारे काम छोड़ दो, चोरी करना छोड़ दो, ये सारी चीजें छोड़ दो, एंड तुम बहुत ही अच्छी लाइफ जी सकते हो। मी, सेड जिमी इन सरप्राइज, व्हाई आई नेवर क्रैक्ड अ सेफ इन माय लाइफ। तो जिमी ना, ही वाज आल्सो प्रिटेंडिंग हियर। तो वो कहता है कि मैंने तो आज तक कभी कोई सेफ क्रैक नहीं करी, तुमने तो मेरे को बिना मतलब ही अंदर कर दिया जेल के। Oh no, laughed the chief officer. Of course not. Let's see now. How did you happen to get sent to prison for opening that safe in Springfield? तो कहता है कि नहीं नहीं, तूने तो कोई भी सेफ क्रैक नहीं करी, और तू तो ऐसे ही आ गया। उस दिन जो स्प्रिंगफील्ड में चोरी हुई थी, जो सेफ किसी ने तोड़ी थी, वो तूने थोड़ी तोड़ी थी। Was it because you wouldn't prove an alibi for fear of compromising somebody important? इस लाइन का मतलब है तू, तुझे इसलिए जेल हुई है क्योंकि तू किसी को, कोई तेरा एलिबाई का मतलब होता है कोई इंसान जब कोई सीन ऑफ क्राइम है उसमें वो बंदे ने, किसी ने देखा हो, कोई दूसरा बंदा प्रेजेंट हो, तो उसको एलिबाई कहते हैं। तो ये कहना चाह रहा है बंदा, जो चीफ ऑफिसर था, वो कहना चाह रहा था कि क्योंकि तू किसी को बचा रहा था इसलिए तू जेल में आया है, क्योंकि कोई तेरे बारे में सच नहीं बता सकता था, तो तू इसलिए आया है। और वाज इट बिकॉज द ज्यूरी डिडंट लाइक यू, या फिर जो जज है, जो तेरे जो केस हैंडल कर रहा था, उसका जो जज था, वो तेरे को पसंद नहीं करता था, इसलिए तेरे को जेल के अंदर भेज दिया, क्योंकि तूने तो कोई क्राइम करा ही नहीं। दिस वाज sarcasm by the way. You men always have a reason like that. You never go to prison because you broke open a safe. तो वो कहता है कि तुम जैसे चोरों की ना यही दिक्कत है, तुम लोग तो बिना मतलब ही जेल के अंदर आ जाते हो, तुमने तो कभी कुछ गलत करा ही नहीं होता। Me? Jimmy said, his face still showed surprise. I never was in Springfield in my life. तो वो कहता है मैं तो स्प्रिंगफील्ड में कभी था ही नहीं अपनी पूरी लाइफ में। Take him away, said the chief officer. Fix him up with outgoing clothes and bring him here at 7 in the morning. Better think over my advice, Valentine. तो वो जो चीफ प्रिजन ऑफिसर था उसने अपने अंडर वाले काम करने को कहा कि इसको ले जाओ एंड इसके बाहर के कपड़े रेडी करो। एंड जिमी वैलेंटाइन, मेरी बात ध्यान से सुनना, बिल्कुल आराम से सोचना इस बारे में, दैट यू कैन स्टिल डू बेटर इन योर लाइफ, यू डू नॉट हैव टू क्रैक ओपन सेव्स और सेव ऑलवेज। तो इस चीज को ध्यान से सोचना। एट अ quarter past 7, कब? quarter past 7 on the next morning, Jimmy stood again in the office. चीफ प्रिजन ऑफिसर के ऑफिस में जिमी फिर से खड़ा हुआ था। दे गेव हिम अ रेलवे टिकट एंड $5। उसको रेलवे टिकट दी कि तू अब अपने घर चला जाइयो, और $5 दिए। These $5 were supposed to help him rehabilitate himself and become a better man, ताकि वो अपने आप को रिस्टोर कर पाए, अपनी लाइफ को फिर से रिज्यूम कर पाए एंड अच्छे से एक लाइफ जी पाए। उसके लिए उसको $5 दिए गए थे। Then the chief prison officer put out his hand for a handshake, और जो चीफ प्रिजन ऑफिसर था उसने अपना हाथ आगे किया और हैंडशेक करने के लिए। And that was the end of Valentine, prisoner 9762। तो यहाँ तक उसकी जो जेल की लाइफ थी वो एंड हो गई। बस ये एंड था उसकी जेल की लाइफ का। मिस्टर जेम्स वैलेंटाइन वॉकड आउट इनटू द सनशाइन, और जो जिमी वैलेंटाइन था, उसका नाम जेम्स वैलेंटाइन भी था, वो वापस बाहर गया एंड वो सनशाइन में बहुत टाइम बाद वॉक किया उसने। ही हेडेड स्ट्रेट फॉर अ रेस्टोरेंट। सबसे पहले जेल से निकलते हुए ना वो रेस्टोरेंट गया कि मैं कुछ जाकर कुछ बहुत ही अच्छा खाऊंगा। There he tasted the first sweet joys of being free, और वहां पर जाकर फ्री मैन के उसने जो जो प्यारा खाना खाया ना। He had a good dinner, बहुत प्यारा डिनर करा, बहुत ही स्क्रम्पशियस, बहुत ही डिलिशियस डिनर करा। From there he went to the train station, और उसके बाद he went to the train station. He gave some money to a blind man who sat there asking for money and then boarded his train. और कुछ पैसे, $5 में से कुछ पैसे एक गरीब आदमी को दे दी और उसके बाद ट्रेन बोर्ड कर ली। 3 hours later he got off the train in a small town. 3 घंटे बाद
वो एक स्मॉल ट्रेन से उतरा एंड एक स्मॉल टाउन में उतरा. ही वेंट टू द रेस्टोरेंट ऑफ माइक डोलन. उसका एक दोस्त था माइक डोलन जो वहां पर अकेला रहता था, जिसको उसने अपने घर की चाबी दे रखी थी कि माइक डोलन मेरे घर का, मेरे रूम को ध्यान से मतलब अच्छे से रखेगा जब तक मैं वापस नहीं आ जाता प्रिजन से. तो वहां पे गया. माइक उससे बहुत प्यार से मिलता है और कहता है कि कैसा है जिमी, आई डेंट एक्सपेक्ट कि तुझे इतनी देर रहना पड़ेगा, इतने टाइम रहना पड़ेगा प्रिजन में, बट चल ठीक है, आई एम सॉरी कि तुझे वहां पर रहना पड़ा, बट आई होप यू आर डूइंग गुड नाउ, और तू वापस आ गया है तो थिंग्स विल गेट बैक टू नॉर्मल अगेन. After shaking hands, Mike said, "Sorry we couldn't do it sooner, Jimmy, my boy. It wasn't easy. Feeling all right?" तो वो कहता है कि सॉरी हम तेरी बेल जल्दी नहीं करा पाए, बट तू ठीक फील कर रहा है ना. फाइन सेड जिमी, इज माई रूम वेटिंग फॉर मी. तो वो कहता है कि मेरा रूम ना एज इट इज ही है ना, जैसे पहले था. He got his key, went upstairs and opened the door of a room at the back of the building. बिल्डिंग के बैक पे एक रूम था, उसका डोर उसने ओपन किया. एवरीथिंग वाज जस्ट एज ही हैड लेफ्ट इट. सब कुछ वैसा ही था जैसे जिमी छोड़ के गया था अपने रूम में. इट वाज हियर दे हैड फाउंड जिमी व्हेन दे टुक हिम टू प्रिजन. और वो यहाँ पे था, अपने रूम में था उस दिन जब वो स्प्रिंगफील्ड वाले केस के वजह से जिमी को जेल में लेके गए थे. देयर ऑन द फ्लोर वाज बेन प्राइस कॉलर बटन. एक डिटेक्टिव था, बेन प्राइस था, वेरी फेमस, वेरी फेमस डिटेक्टिव, जो ऐसे ही केसेस पे वर्क करता था. उसके कॉलर का बटन था जो कि टूट गया था डिटेक्टिव की शर्ट से जब जिमी भाग रहा था, उससे लड़ रहा था, अपने रूम से भाग रहा था जब स्प्रिंगफील्ड वाले केस में उसको पुलिस ले जा रही थी. देयर वाज अ फोल्डिंग बेड अगेंस्ट द वॉल. वॉल के साथ में एक फोल्डिंग बेड था, जो उसका बेड था जहाँ पे वो सोता था. जिमी पुल्ड द बेड टुवर्ड्स द मिडल ऑफ द रूम. साइड पे लगा हुआ था ना, जिमी ने उसको बीच में करा. ही स्लिड बैक अ पैनल इन द वॉल एंड पुल्ड आउट अ डस्ट कवर्ड बैग. उसने वॉल को खोला, वॉल के अंदर एक पैनल था, उसके अंदर एक चीज पड़ी हुई थी. ही ओपनड इट एंड लुक्ड लविंगली एट द बर्गलर्स टूल्स. एक डस्ट कवर्ड बैग था उस पैनल के अंदर. उसने उस बैग को खोला एंड बहुत ही प्यार से अपने टूल्स को देखा. उस बैग में उसके टूल्स थे जिससे वो सेफ को ओपन करता था. वो टूल्स उसने कस्टम मेड बनवाए थे, अपने लिए बनवाए थे, अपनी खुद की स्पेसिफिकेशन से बनवाए थे. दे वर कंप्लीट, एवरीथिंग ही नीडेड वाज देयर. और सब कुछ जो उसको सेफ क्रैकिंग के लिए चाहिए होता था ना, सब कुछ था. इवन आफ्टर स्टेइंग फॉर 4 months इन जेल, he could not reform himself इस point तक, and he was still going to crack open these safes. They were complete. Everything he needed was there. They had been made of a special material in the necessary shapes and sizes. Jimmy had invented 2 or 3 tools himself in which he took pride. और 2-3 tools तो जिमी ने खुद ही बनाए थे जिसके लिए वो बहुत ज्यादा प्राउड फील करता था. It had cost him over $900. कितने डॉलर्स? $900 कि पड़े थे उसको ये tools. To have these tools made at a place where they make such things for his profession. In half an hour, Jimmy went downstairs. आधा घंटा वो रुका अपने रूम में. Then वो नीचे गया and through the restaurant, और रेस्टोरेंट में गया. He was now dressed in good clothes that fitted him well. और अब वो ऐसे कपड़े पहन के गया था जो उसको बहुत अच्छे से फिट आ रहे थे. वो कोई बहुत लूज हैंगिंग टाइप के कपड़े नहीं पहन रखे थे उसने. He carried his dusted and clean bag in his hand. उसने अपना वो जो बैग था, जो उसका टूल वाला बैग था, वो अपने हाथ में पकड़ा and he went out. Do you have anything planned? asked Mike Dolan. तो माइक जो उसका फ्रेंड था उसने पूछा कि तूने कुछ प्लान कर रखा है क्या? मी आज जिमी इन अ पजल टोन. तो जिमी ना हमेशा सरकाज़म दिखाता था. जिमी ऐसे प्रिटेंड करता था कि वो कुछ करता ही नहीं है. आई डोंट अंडरस्टैंड. आई वर्क फॉर द न्यूयॉर्क ब्रेड एंड केक मेकर्स कंपनी एंड आई सेल द बेस्ट ब्रेड एंड केक इन द कंट्री. तो जिमी कहता है कि मैं क्या करूंगा, मैं तो एक ब्रेड और केक कंपनी के लिए काम करता हूँ एंड वो दुनिया में सबसे अच्छे ब्रेड और केक बनाते हैं. माइक एंजॉयड दीज वर्ड्स एंड लाफ्ड. और माइक ना ये वर्ड सुन के बहुत तेज हंसा. माइक डोलन जो उसका फ्रेंड था, उसको लगा कि क्या यार, क्या बात कर रहा है तू. Jimmy had some milk. He never drank anything stronger. So Jimmy had some milk to drink because he was not an alcoholic. He only drank milk. A week after Valentine 9762 left the prison, a safe was broken open in Richmond, Indiana. And after he was set out on bail, उसके बाद एक वीक के बाद एक फिर से सेफ ब्रेक हुई इन रिचमंड, इंडियाना. नो वन न्यू हु डिड इट. $800 वर टेकन. $800 चोरी हो गए थे. उसके बाद 2 वीक के बाद एक सेफ ओपन हुई, एक तिजोरी ओपन हुई लोगन स्पोर्ट में. वो टूटी गई.
It was a new kind of safe. It had been made, they said, so strong that no one could ever break it open. वो जो लोगन स्पोर्ट में सेफ थी ना, वो इतनी स्ट्रांगली, इतना ज्यादा स्ट्रांग लॉक था उसका कि वो लोग कहते थे कि कोई भी इसको तोड़ नहीं सकता. बट स्टिल Jimmy was at work and he broke open that safe. But someone did it and took $1,500. Then a safe in Jefferson City was opened. $5,000 were taken. और जेफरसन सिटी में जो ब्रेक हुई सेफ, उसमें $5,000 ले जाए गए. This loss was a big one. Ben Price was a cop who worked on such important matters and now he began to work on this. तो जो बेन प्राइस था ना, वो एक ऐसा कॉप था, पुलिस था, डिटेक्टिव था, कि वो ऐसे कामों में होता था. मतलब he was the one to work on these kind of cases, these important matters. He went to Richmond, Indiana and to Logansport and to see how the safe breaking had been done in those places. Now he was trying to make sense out of this all कि कैसे वो जो break थी, safe थी, वो break हुई. He was heard to say, I can see that Jim Valentine has been here. He's in business again. Look at the way he opened this one. He's the only man who has the tools to do it. And he's the only man who knows how to use tools like this. तो अब जो बेन प्राइस था ना, वो बोलता है कि ये जो जितनी भी सेफ ओपन हुई है ना, लोगन स्पोर्ट में, रिचमंड में, इंडियाना में, सब जगह, तो जिमी वैलेंटाइन ने ही करी है. बिकॉज जिमी वैलेंटाइन इज द ओनली पर्सन हु नोज हाउ टू ब्रेक ओपन सेव्स इन दिस मैनर एंड ही इज द ओनली पर्सन हु हैज द टूल्स टू ब्रेक ओपन सेव्स. नेक्स्ट टाइम ही गोस टू प्रिजन नाउ. यस आई वांट मिस्टर वैलेंटाइन. अब वो कहता है, बेन प्राइस कहता है कि अब तो मैं इसको पकड़ के रहूंगा. एंड नेक्स्ट टाइम ही गोस टू प्रिजन ही इज गोइंग टू स्टे देयर अंटिल हिज टाइम इज फिनिश्ड. और अब नेक्स्ट टाइम जब मैं इसको पुलिस के हवाले करूंगा ना, तो ये तब तक जेल में रहेगा जब तक इसका पूरा टाइम सर्व नहीं हो जाता. क्योंकि इस बार वो 4 महीने में निकल गया था. ऑल्दो ही हैड टू स्टे देयर, सॉरी 11 मंथ्स में निकल गया था. ऑल्दो ही हैड टू स्टे देयर फॉर अराउंड 4 years. बट अब अगर वो जेल में जाएगा तो ही विल हैव टू कंप्लीट हिज सेंटेंस. बेन प्राइस न्यू हाउ जिमी वर्कड. बेन प्राइस को पता था कि जिमी का काम कैसा था एंड वो कैसे अपना पूरा सेटअप करता था, कैसे वो चोरी करता था. He had learned about it while working on the Springfield case. और Springfield case में Ben Price ने ही हेल्प करी थी जिमी को पकड़वाने में. Jimmy would go from one city to another far away. He always worked alone. He always left quickly when he was finished. और जो जिमी था ना, he was a mastermind. I told you beforehand. तो वो बहुत ज़्यादा टाइम एक जगह पे रुकता नहीं था. जैसे उसका काम हो जाता था, वो सिटी चेंज कर लेता था. For these reasons, it was not easy to catch Mr. Valentine. And वो और अच्छे लोगों के साथ रहना उसको मजा आता था. तो इसलिए पेन प्राइस के लिए इजी नहीं था जिमी वैलेंटाइन को कैच करना. People with safes full of money were glad to hear that Ben Price was at work trying to catch Mr. Valentine. Now, all the people who had a lot of money, who had a lot of safes full of money, they were now relieved that Ben Price was at work and he was going to catch Mr. Valentine or Jimmy Valentine before he opens their safes. One afternoon, Jimmy Valentine and his bag arrived in a small town named Elmore. Jimmy, looking as young as a college boy, walked down the streets towards the hotel. Now, this time, Jimmy Valentine, he reached a new place, a new town named Elmore. And he was looking very young. He was looking like a college boy and he was walking towards his hotel. A young lady walked across the street, passed him at the corner, looked at him and entered the door. एक बहुत ही यंग लेडी निकली वहां से, उसने कॉर्नर से निकली एंड जिमी वैलेंटाइन उसका आई कांटेक्ट हुआ एंड वो एक डोर में घुस गई. ओवर द डोर वाज द साइन द एल्मोर बैंक. अब देयर वाज अनदर बैंक एंड बैंक में देयर आर लॉट ऑफ सेफ. सो नाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि क्या होना था. बट दिस इज वेयर देयर इज अ ट्विस्ट इन द स्टोरी कि क्या होना था वो नहीं हुआ. बट देयर इज समथिंग एल्स दैट हैपेंड. यंग मेन लाइक जिमी वर स्कार्स इन एल्मोर. और जो एल्मोर था ना, देयर वाज नॉट अ लॉट ऑफ न्यू पॉपुलेशन इन एल्मोर. बहुत बुढ़े लोग रहते थे वहाँ पे और यंग मैन जिमी की तरह बहुत ज़्यादा स्कार्स थे. और वहाँ पे बेसिकली इतनी ज़्यादा चोरी भी नहीं होती थी. देयर वर नो पीपल हु न्यू हाउ टू सेफ क्रैक. तो इट वाज अ वेरी गुड प्लेस फॉर हिम ताकि वो यहाँ पर आके चोरी आराम से कर सकता था. जिमी सॉ अ बॉय नियर द बैंक एंड बिगैन टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट द टाउन. सो जो जिमी था ना, he saw a person, he saw a little boy near the bank and he started inquiring, he started asking questions about the town so that he knew कि कौन-कौन लोग अमीर हैं, किसके यहाँ जाकर वो सेफ क्रैक करके बहुत सारे पैसे निकाल सकता है. After some time the young and began to ask questions about the town. After some time the young lady came out and went her way.
After some time, the young lady that went into that bank, she came out and she went her way. She didn't seem to see Jimmy as she passed him, and she did not see Jimmy while she passed him. Isn't that young lady Polly Simpson? Asked Jimmy. तो Jimmy उस बच्चे से पूछता है कि जो लड़की अभी गई है ये पॉली सिम्पसन तो नहीं है? No, said the boy. She's Annabelle Adams. Her father owns the bank. तो वो बोलता है बच्चा कि नहीं नहीं जिमी सिम्पसन तो कोई नहीं है, सॉरी पॉली सिम्पसन तो कोई नहीं है, शी इज एनिमल एडम्स एंड शी इज द ओनर ऑफ दिस बैंक, क्योंकि इसके पापा ओन करते हैं इस बैंक को. जिमी वेंट टू द प्लांटर्स होटल वेयर ही सेड हिज नेम वाज रैल्फ डी स्पेंसर. कहाँ गया वो गया प्लांटर्स होटल में, एंड वहां उसने अपनी आइडेंटिटी चेंज करके बोला उसका नाम था मार्क्स, सॉरी Ralph D. Spencer. He changed his identity to the name Ralph D. Spencer. Planters Hotel में. Now, he got a room there. He told the hotel man that he had come to Elmore to go into business. How was the shoe business? Was there already a good shoe shop? तो जो बंदा था ना जो वहां पर खड़ा हुआ था रिसेप्शन पे, उसने उससे इंक्वायर किया, जिमी ने उस रिसेप्शनिस्ट से कि मैं यहाँ पर बिजनेस के लिए आया हूँ, तो यहाँ पे शू बिजनेस कैसा है, क्या यहाँ पे एक ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड शू बिजनेस में कोई इंसान है जो बहुत अच्छा कर रहा है, डू आई हैव अ कॉम्पिटिशन. तो वो उससे बात करता है. ऑल बिजनेस इन एल्मोर वाज गुड. The hotel man hoped Mr. Spencer would decide to stay in Elmore. It was a pleasant town to live in and the people were friendly. तो जो भी बिजनेस था ना एल्मोर में वो अच्छा था, एंड द होटल मैन द रिसेप्शनिस्ट ही थॉट दैट Mr. Spencer would stay, and it was because the town Elmore, it was a good town, the people there were friendly, there were job opportunities, and पूरा nature था, सब कुछ वो बहुत अच्छा था टाउन का. Mr. Spencer said that he would stay in town for a few days and learn something about it. So जो जिमी था, जिमी slash Mr. Spencer, they are both the same person. So he said he himself would carry his bag up to the room. He didn't want a boy to take it. It was very heavy. तो वो अपना सेफ कीपिंग वाला बैग, जो सेफ ब्रेकिंग वाला बैग था ना, जो सेफ क्रैकिंग वाला बैग था, वो भी लेके आया था. उसके अंदर बहुत सारे टूल्स थे. तो उसने बोला कि ये मैं ऊपर खुद ले जाऊंगा. आई डोंट वांट एनी बॉय या फिर एनी पर्सन ऑफ योर होटल टू कैरी इट बिकॉज इट इज टू हैवी, सो आई कैरी इट माई सेल्फ. मिस्टर रैल्फ स्पेंसर रिमेन्ड इन एल्मोर. तो जो जिमी था वो एल्मोर में ही रहा. He opened a shoe store. Business was good. He also made many friends and he was successful with the wish of his heart. He met Miss Annabelle Adams. He liked her better every day. So there he met the Elmore Bank's owner, Miss Annabelle Adams, and he was very happy there. वो उसको पसंद करता जा रहा था जैसे जैसे टाइम बीत रहा था. एट द एंड ऑफ द ईयर एवरीवन इन एल्मोर लाइक मिस्टर रैल्फ स्पेंसर. और सबको जिमी पसंद आने लग गया था. His shoe store was doing very good business and his shoe store was a success. And he and Annabelle were engaged to be married in 2 weeks. और 2 वीक्स में एनाबेल और जिमी की या फिर रैल्फ स्पेंसर की शादी होने वाली थी. मिस्टर एडम्स द स्मॉल टाउन बैंकर लाइक स्पेंसर. और जो मिस्टर एडम्स थे जो एल्मोर बैंक के ओनर थे या फिर जो ये एनाबेल एडम के पापा थे, वो स्पेंसर को लाइक करते थे या जिमी को लाइक करते थे. एनाबेल वाज वेरी प्राउड ऑफ हिम. ही सीम्ड ऑलरेडी टू बिलोंग टू द एडम्स फैमिली. और एनाबेल उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्राइड फील करती थी, मतलब बहुत प्राइड लेती थी उसमें. एंड वो ऑलरेडी ऐसा लगता था दैट ही वाज अ पार्ट ऑफ द एडम्स फैमिली. One day, Jimmy sat down in his room and wrote this letter which he sent to one of his old friends in St. Louis. एक बार जिमी ने एक लेटर लिखा अपने एक ओल्ड फ्रेंड को जो सेंट लुइस में रहता था, एंड ही सेंड किया. Dear old friend, I want you to meet me at Sullivan's place in Little Rock next Wednesday night at 9 o'clock. I want to give you my tools. I know you will be glad to have them. You couldn't buy them for $1,000. I quit the old business a year ago. I have a nice shop. I'm living a better life and I'm going to marry the best girl on earth 2 weeks from now. It's the only life I wouldn't ever touch again, another man's money. After I marry, I'm going to go west where I'll never see anyone who knew me in my old life. I tell you, she's a wonderful girl. She trusts me and I wouldn't do another crooked thing in the whole world. Your old friend, Jimmy. तो जिमी अपने एक पुराने दोस्त को बोलता है
कि मैं तेरे से मिलूंगा लिटिल रॉक में, सुलिवन्स प्लेस में, और मैं तेरे को अपने सारा सामान जो भी मेरी सेफ क्रैकिंग के टूल्स थे वो दे दूंगा। तू खरीदना चाहता था ना, पर तुझे $1000 में भी नहीं मिल रहे थे, मैं तुझे फ्री में दे दूंगा। आई हैव क्विट दिस ओल्ड बिजनेस, आई हैव अ न्यू लाइफ, आई हैव अ न्यू शॉप, मैं अपने बिजनेस में अच्छा कर रहा हूँ, एंड आई एम गोइंग टू मैरी द बेस्ट वुमन इन दिस वर्ल्ड, आई लव हर अ लॉट, एंड मेरे को अब ये बिजनेस नहीं करना है, आई एम नॉट गोइंग टू टच एनी अदर मैन्स मनी एवर इन माई लाइफ, एंड जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं वेस्ट की तरफ जाऊंगा, और कोई भी पास्ट में जो बंदा मेरे को जानता था वो मेरे को वहां पर नहीं मिलेगा, and I'll live a happy and simple life with my loving wife. On the Monday night after Jimmy sent this letter, Ben Price arrived quietly in Elmore. जब मंडे की रात को जिमी ने ये लेटर भेजा तो जो बेन प्राइस था ना, जो डिटेक्टिव था जो जिमी के केस पे काम करता था, वो एल्मोर पहुंचा। ही मूव्ड स्लोली अबाउट द टाउन इन अ क्वाइट वे एंड ही लर्नड ऑल दैट ही वांटेड टू नो। वो हल्के हल्के उसने हर एक बंदे से जाके इंक्वायर किया अबाउट जिमी वैलेंटाइन या फिर रैल्फ टी स्पेंसर, एंड उसको सब पता लग गया कि वो किससे डेट कर रहा है, किससे एंगेज्ड है बेसिकली, किससे बातें करता है, कौन उसके फ्रेंड्स है, उसका नाम क्या है, उसने क्या प्रोफेशन चूज किया है, सब कुछ पता लग गया बेन प्राइस को। द नेक्स्ट मॉर्निंग जिमी वॉज विद एनाबेल एंड हर फैमिली। नेक्स्ट मॉर्निंग जो जिमी था वो एनाबेल के साथ था और उसकी फैमिली के साथ था। He was going to Little Rock that day to buy new clothes for the wedding. और उस दिन वो जा रहा था लिटिल रॉक ताकि वो नए कपड़े ले ले वेडिंग के लिए। He was also going to buy a gift for Annabelle, and he was also going to surprise Annabelle with a very beautiful gift. It would be his first trip out of Elmore, and एक साल हो गया था, he had not been any kind of crooked business. तो एक साल बाद वो एल्मोर के बाहर जा रहा था, लिटिल रॉक जा रहा था। It had been more than a year since now he had done any safe breaking. और एक साल से ऊपर हो गया था कि उसने कोई भी सेफ ब्रेकिंग नहीं करी थी। Many in Annabelle's family went to the bank together that morning. और उस दिन बहुत सारे लोग एनाबेल की फैमिली में से, एडम्स फैमिली में से बैंक गए, उनके एल्मोर बैंक ही गए, जो बैंक उसको बिलोंग करता था, मिस्टर एडम्स को बिलोंग करता था। देयर वर मिस्टर एडम्स, Annabelle, Jimmy, and Annabelle's married sister with her two little girls, aged 5 and 9. They passed Jimmy's hotel and Jimmy ran up to his room and brought along his bag. Then they went to the bank. Jimmy गया अपने होटल में and वो बैग लेकर आ गया, और फिर वो लोग बैंक चले गए। All went inside, Jimmy too, for he was one of the family. Jimmy put down his bag. Annabelle, laughing, put Jimmy's hat on her head and picked up the bag. और ना एनाबेल जो थी, जो उसकी फियांसी थी, उसने जिमी की हैट अपने सिर पे रखी एंड वो बैग पकड़ा, क्योंकि जिमी ऐसे ही चलता था जहां जाता था। हाउ डू आई लुक, she asked Ralph. How heavy this bag is. Feels like it was full of gold bricks. तो वो बोलती है कि रैल्फ टी स्पेंसर था ना जिमी का न्यू नेम, तो उसने कहा कि ये जो बैग है इतना भारी, ऐसे लग रहा है जैसे गोल्ड की ब्रिक्स हैं इसके अंदर। It's full of things I do not need in my shop, Jimmy said. I'm taking them to the city, to the place where they've come from. I'm going to be a married man. I must learn to save money. तो जिमी इस पे रिप्लाई करता है, या रैल्फ टी स्पेंसर इस पे रिप्लाई करता है कि ये जो बैग है इसमें वो चीज़ें हैं जो मुझे अपनी शॉप में अब नहीं चाहिए, एंड मैं इनको वहाँ पर वापस देने जा रहा हूँ जहाँ से ये आए थे। आई एम गोइंग टू बी अ मैरिड मैन नाउ, 2 weeks फ्रॉम नाउ, एंड आई विल हैव टू लर्न टू सेव अ लिटिल बिट ऑफ मनी, तो मैं सामान को बेच दूंगा। द एल्मोर बैंक हैड अ न्यू सेफ। अब जो एल्मोर बैंक था ना, जो उसके फादर इन लॉ को, होने वाले फादर इन लॉ को बिलोंग करता था, उसमें एक न्यू सेफ था। मिस्टर एडम्स वॉज वेरी प्राउड ऑफ इट एंड ही वॉन्टेड एवरीवन टू सी इट। सो मिस्टर एडम्स और एनाबेल्स फादर और जिमी वैलेंटाइन्स फियांसे's फादर was very proud of that safe. It was as large as a small room and it had a very special door. वो इतना बड़ा था जैसे एक छोटा रूम हो, उतना सेफ था वो, एंड उसका जो डोर था वो बहुत ही स्पेशल था, बिकॉज इट वॉज नॉट हैंडल्ड थ्रू अ लॉक, बट एक क्लॉक से हैंडल होता था वो। एक क्लॉक में जब टाइम होगा तभी वो खुल पाएगा, उससे पहले वो सेफ को कोई भी नहीं खोल सकता, नॉट इवन द पर्सन हु हैज बिल्ट इट, नॉट इवन हु इज द ओनर ऑफ द सेफ। Using the door was controlled by a clock. Using the clock, the banker planned the time when the door should open. At other times, no one, not even the banker himself, could open it. He explained about it to Mr. Spencer. उसने जो मिस्टर एडम्स थे, मिस्टर एडम्स ने जिमी को ये सब बताया। मिस्टर स्पेंसर seemed interested, but he did not appear to understand very easily. जो मिस्टर स्पेंसर था या जिमी था, उसको बड़ा मजा तो आया सुनने में, पर उसको सब कुछ समझ नहीं आया। तो two children, May and Agatha, enjoyed seeing the shiny heavy door with all its special parts. और जो May and Agatha थी, जो एनाबेल की मैरिड सिस्टर की बेटियां थी,
वो उनको बहुत अच्छा लगा वो शाइनिंग डोर एंड उसके पूरे पार्ट्स. While they were busy like this, Ben Price entered the bank and looked around. और जब ये लोग सब बिजी थे उस सेफ को देखने में, तो जो डिटेक्टिव था बेन प्राइस वो अंदर आया एंड उसने सारी जगह देखा, सबसे थोड़ी बातचीत करी, पूछा. He told a young man who worked there that he had not come on business. He was waiting for a man he knew. तो उसने बोला कि वो किसी काम से नहीं आया है, but he was just waiting for a friend of his, an old friend. Suddenly there was a scream or two from the woman. They had not been watching the children. तो जो एनिमल एडम्स थी ना एंड उसकी सिस्टर, वो एकदम से चीखी. मे द 9-year-old गर्ल हैड प्लेफुली बट फर्मली क्लोज द डोर ऑफ द सेफ. और जो मे थी उसने एकदम से मजाक में डोर बंद कर दिया था, और जो उसकी बहन थी आगे था, छोटी बच्ची जो थी 11 years की, वो अंदर थी. द ओल्ड बैंकर ट्राइड टू ओपन द डोर. ही पुल्ड एट इट फॉर अ मोमेंट. द डोर कांट बी ओपन्ड, ही क्राइड, एंड द क्लॉक आई हैडंट स्टार्टेड इट येट. Agatha's mother cried out again. और क्या हुआ कि उसने बंद कर दिया उसको, और जो मिस्टर एडम्स थे उन्होंने डोर खोलने की कोशिश करी, बट बिकॉज इट वाज सेट एट अ टाइम एंड क्लॉक से सेट था, द डोर कुड नॉट बी ओपन्ड, एंड द ओनली थिंग दैट कुड ओपन द डोर वाज द क्लॉक. एंड जब वो टाइम होता, बट इतने टाइम जो बच्ची थी आगथा, अगर वो उसमें रहती, देयर वाज नॉट अ लॉट ऑफ रूम टू ब्रीथ इन दैट सेफ, एंड वो डर से वहां पर अनकॉन्शियस हो जाती. तो जो आगता की मम्मी थी, शी स्टार्टेड क्राइंग. Quiet, said Mr. Adams, raising a shaking hand. All be quiet for a moment, Agatha, he said as loudly as he could. Listen to me. तो वो कहते, बिल्कुल ना शोर मच गया था. सो मिस्टर एडम कहता है कि सब चुप हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो. They could hear but not clearly the sound of the child's voice. In the darkness inside the safe, she was wild with fear. Because she was, she was she was feeling very fearful because वो अंदर लॉक हो गई थी and there was only darkness all around. My baby, her mother cried. She will die of fear. Open the door, break it open. Can't you men do something? तो जो आगथा की मम्मी थी वो कहती हैं कि सब लोग प्लीज वो खोल दो, गेट खोल दो, मेरी बच्ची मर जाएगी वहां पे डर से. There isn't a man nearer than Little Rock who can open the door. तो जो मिस्टर एडम है वो कहते हैं कि लिटिल रॉक में है सिर्फ जो इंसान खोल सकता है, यहाँ पर तो कोई भी इंसान नहीं है जो सेफ को ओपन कर पाए. My God, said Mr. Adams in a shaky voice. My God, Spencer, what shall we do? That child, she can't live long in there. There isn't enough air and the fear will kill her. तो एनाबेल कहती है अपने फियांसे को कि स्पेंसर प्लीज कुछ करो. उसको नहीं पता था दैट जिमी वैलेंटाइन वाज अ सेफ क्रैकर एट अ टाइम. She had no idea about Jimmy's past because Jimmy was a new man in front of Annabelle Adams. So she had no idea. बट स्टिल उसने अपने फियांसे को बोला कि प्लीज हेल्प कर, वो वहां पे मर जाएगी. एनिमल टर्न टू जिमी एंड सेड, कांट यू डू समथिंग रैल्फ, ट्राई वोंट यू. एनिमल कहती है कि प्लीज कुछ करो, कुछ तो हो सकता है, मे बी बस एक बार ट्राई तो करो. He looked at her with a strange soft smile on his lips and in his keen eyes. और बहुत ही सॉफ्ट सी स्माइल से जिमी वैलेंटाइन या रैल्फ टी स्पेंसर अपनी फियांसे को देखता है. एनाबेल, he said, give me the flower you are wearing, will you? तो वो कहता है कि अपना जो फ्लावर तूने पहना हुआ अपने बालों में वो मुझे दे. She could not believe that she really heard him right, but she put the flower in his hand. So she was thinking, why would he need a flower from me right now at this serious moment? But still she believed him and put the flower in his hand. Jimmy took it and put it where he could not lose it. So Jimmy ने वहां पे रखा उस फ्लावर को जहां पर वो उसको खोएगा नहीं. Then he threw off his coat, अपना कोट उतारा. With that act, Ralph T. Spencer passed away and Jimmy Valentine took his place. जो उसकी ऑल्टर पर्सनालिटी थी, रैल्फ डी स्पेंसर, जो एक बहुत ही शरीफ इंसान था, बहुत ही नाइस पर्सन था, ही पास्ड अवे, उसकी डेथ हो गई. डेथ ये नहीं हुआ कि उसकी डेथ ही हो गई, मतलब ही शेड ऑफ दैट पार्ट ऑफ हिज पर्सनालिटी, ही शेड ऑफ हिज ऑल्टर पर्सनालिटी एंड ही केम बैक टू बीइंग हिज ओल्ड पर्सन, दैट वाज जिमी वैलेंटाइन. नाउ ही न्यू दैट ही हैड टू सेव ओपन दैट ब्रेक टू सेव Agatha and he was back at it again. Stand away from the door, all of you, he commanded. And he commanded कि सब लोग डोर से दूर खड़े हो जाओ. He put his bag on the table and opened it flat. जो उसका बैग था जिसके अंदर सेफ क्रैकिंग के टूल्स थे उसने वो खोले एंड उसको आराम से रख दिया. From that time on, he seemed not to know that anyone else was near. एंड उस टाइम उसने कुछ नहीं सोचा कि कोई और पास में था या कोई और उसको जेल हो जाएगी या कुछ भी. He did not think about it. He only wanted to crack open that safe.
Quickly, he laid the shining, strange tools on the table. The others watched as if they had lost the power to move. And everybody else was watching Jimmy as if he was the only person who knew how to do everything. And nobody moved, nobody made a sound. In a minute, Jimmy was at work on the door. In 10 minutes, faster than he had ever done it before, he had the door open. और 10 मिनट में जिमी ने डोर खोल दिया, वो सेफ को क्रैक कर दिया. एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा हुआ था कि उसने अपना रिकॉर्ड तोड़ा था यहाँ पे 10 मिनट में सबसे पहले. इतनी जल्दी उसने पहले कभी भी कोई सेफ को क्रैक नहीं करा था, बट दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट ही क्रैक्ड ओपन अ सेफ इन लेस देन 10 मिनट्स. Agatha was taken into her mother's arms, और Agatha को, उस बच्ची को अपनी मम्मी के आर्म्स में ले जाया गया. Jimmy Valentine put on his coat, picked up the flower and walked towards the front door. So why did he ask for that flower? Because he knew कि Ben Price यहाँ पे आ गया है and अब उसने ये सब दिखाई दिया है अपने tools को open करके. So he was going to jail. But he wanted that flower as a memory of Annabelle, ताकि अगर वो जेल में भी हो तो he would have a memory of his beloved fiance, her time. Picked up the flower and walked towards the front door. As he went, he thought he heard a faraway voice called Ralph, but he did not stop. और वो चलता गया बाहर और उसको सुनाई दिया कि किसी ने उसका नाम बुलाया, बट वो रुका नहीं. At the door, a big man stood in his way. और डोर में एक बहुत बड़ा आदमी खड़ा हुआ था उसके रास्ते में. Hello, Ben, said Jimmy, still with a strange smile. You are here at last, aren't you? Well, let's go. I don't care now. तो जो जिमी था वो बेन प्राइस खड़ा होता है, वो डिटेक्टिव. तो जिमी कहता है कि हाय बेन, तू एटलीस्ट यहाँ पर आई गया, फाइनली यू आर हियर एंड आई डोंट केयर नाउ, अब हम चलते हैं, ठीक है, टेक मी टू जेल. एंड देन उसने ये नहीं बोला टेक मी टू जेल, बट व्हाट ही मेंट वाज दैट आई एम रेडी टू गो विद यू, आई डोंट केयर एनी मोर. एंड देन बेन प्राइस एक्टेड रादर स्ट्रेंजली. बट ये पॉइंट पे ना बेन प्राइस का जो बिहेवियर था वो बहुत वियर्ड था. ही डिड नॉट टेक हिम टू द जेल. And then Ben Price acted rather strangely. I guess you're mistaken, Mr. Spencer, he said. I don't believe I know you, do I? तो Ben Price कहता है कि Mr. Spencer, I don't know you. I think you're mistaken. I am not Mr. Price. I guess you're mistaken. So I don't know you. And Ben Price turned and walked away slowly down the street. So this was the formation of Jimmy Valentine, the safecracker. This was his redemption and how he went from being a safecracker to a simple man who fell in love and became a better person. So let's come to the competency-based questionnaire. Which of the following words is correctly spelled? The answer is rehabilitate. First one. Which of the following words has the same meaning as break? The answer is crack. Which part of the given sentence has an error? If the sentence is free from error, mark no error. In the prison shoe shop, Jimmy was busy on work making shoes. The error is busy on work. He was busy at work. On नहीं होता है, at होता है. Busy on work making shoes. ये है error. Now, who was at work? Jimmy, prison officer, or both A and B? The answer is Jimmy. Where did the prison officer take Jimmy? He took Jimmy to the prison office where he was given an important piece of paper. Jimmy had served merely 11 months, 10 months of a 4-year sentence. Jimmy gave an important piece of paper to the officer. False. The officer gave an important piece of paper to Jimmy. At what time did Jimmy stand again in the office? 7:30, 7 o'clock, or 7:15? The answer is 7:15. They gave him a dash ticket, railway ticket. They gave him $6. True or false? False. They gave him $5. How much money was he given and why? He was given $5 and a railway ticket to rehabilitate himself. Take the correct option. Who was making shoes in the prison shoe shop? Anthony, prison officer, or Jimmy Valentine? The answer is Jimmy Valentine. Jimmy had served nearly 10 months of a dash-year sentence. 6-year sentence, 5-year sentence, or a 4-year sentence? The answer is 4-year sentence. Jimmy was a safecracker, murderer, or kidnapper? The answer is safecracker. At the hotel, Jimmy said his name was Mike Caprio or Ralph D. Spencer. The answer is Ralph D. Spencer. Now, you are not a bad fellow at heart, said the chief prison officer.
Mr. Spencer had decided to stay in Dash Town for a few days, Elmore Town. Jimmy was going to Dash that day to buy new clothes for the wedding to Little Rock. Annabelle's married sister had two little girls. Now, true or false? Annabelle's Adam's father was the owner of the Elmore Bank. True. Jimmy stayed at the Planters Hotel with his real name. False. He stayed at the Planters Hotel with his false name or his pretentious name. That was Ralph T. Spencer. Jimmy opened a garment store in Elmore. False. He opened a shoe store in Elmore. The new safe in the Elmore Bank had a very special door which was controlled by a clock. True. Now let's come to the question answers. Who was Jimmy Valentine? He was a safe cracker. Where did Jimmy Valentine keep and hide his burglar's tools and while he was in prison? In a panel inside the room, inside his room, in a box. Why did Jimmy go to Elmore? What happened to him there? He went to Elmore because young men like him were scarce in Elmore, and there were a lot of opportunity for men like him there. And what happened to him there? He opened a shop, he reformed himself, and he fell in love. How did Jimmy get information about Annabelle and the town? There was a little boy sitting outside the Elmore Bank, from whom Jimmy extracted all the information about Annabelle Adams as well as the town. Where was Jimmy set to go after he cracked the safe? After Jimmy cracked the safe of the Elmore Bank, he was ready to go to prison with Ben Price, the detective. But the things changed at that moment. In the letter to his old friend, what concerns did Jimmy express? Jimmy said that he had quit his old business and he would never hurt or take anybody else's money again, and that he had a new shoe shop and he was going to marry the best woman in the world after 2 weeks. So he wanted to give his old tools to his friend. What did Ben Price do at the end of the story and why? Ben Price did not arrest Jimmy at the end of the story because he wanted to give him a chance at life. He wanted Jimmy to rehabilitate himself, to reform himself, to make a man out of himself. So this Ben Price gave him a chance at life, and he transformed him into a better person. So that was the story. And this story tells us कि अगर हमारी लाइफ में कोई अच्छे लोग आते हैं and if there are people who actually love us and support us even at our lowest, then we would not want to do any bad things in life, and कुछ भी गलत करके लाइफ में अच्छा नहीं होता है. So do good things, do not hurt the other person. कोई भी इंसान हो, किसी का बुरा मत करो. Do good in life. Thank you so much. Happy learning. Goodbye.